Good evening, everybody. Bache, today we'll be discussing some questions from chapter metals and non-metals. Metals and non-metals chapter से हम आज कुछ revision questions जो हैं वो pick करेंगे. MCQs हैं सारे. All right. So we'll be picking up these questions from metals and non-metals. All right. Okay. So bache, question number 1. Which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? बच्चे इनमें से कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ एज वेल एज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो बच्चे इसमें ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा. यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर दिस. इट इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज. If you talk about potassium and sodium, they have a very strong reaction with cold water. ये cold water के साथ ही react कर जाते हैं. Then if you talk about calcium has mild reaction with cold water. All right. उसके बाद अगर बच्चे मैं देखूं मैग्नीशियम विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर. हॉट और यू कैन से बॉइलिंग वाटर. कोल्ड वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है. ऑलराइट. विद कोल्ड वाटर इट हैज नो रिएक्शन. ऑलराइट. उसके बाद है बच्चे आप देखिए एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, they do not react with hot or boiling water but they will only react with steam. ये सिर्फ steam के साथ react करते हैं. तो potassium and sodium they have very strong reaction with cold water. Calcium it has very mild reaction with cold water. Obviously अगर आप water को थोड़ा गर्म करोगे तो reaction तेज हो जाएगा. Magnesium का बच्चे cold water के साथ कोई reaction नहीं है, it only reacts with hot or boiling water. Aluminium, zinc and iron इनको आप steam के साथ react करोगे. All right. तो बच्चे इस तरीके से आपको याद रखना है. तो बच्चे इफ आई लुक एट द क्वेश्चन हियर, अगर मैं आप क्वेश्चन को देखूं तो आप में से काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है. करेक्ट आंसर इज आयरन. बच्चे इट विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर. ये कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता. अगर आप बच्चे आयरन को लो, आयरन इन सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर, इट विल ओनली रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, गैस. स्टीम की फॉर्म में चाहिए आपको वाटर. Then it will form Fe3O4, magnetic oxide of iron plus hydrogen gas. All right, आप इसको बैलेंस कर सकते हो. It will be 3, 4, all right, 4H2. Okay, तो इस तरीके से ये बैलेंस होगा. And बच्चे this oxide is known as magnetic oxide of iron. ठीक है. All right, और ferroso-ferric oxide. That is absolutely right. चलो क्वेश्चन नंबर 2. A student performs some activities on substances and records the observations in a table as shown. Substance M cuts with a knife. Okay. It forms small pieces. N also forms small pieces. Beaten with hammer, shape changes into powder. Stricken with a metal rod, makes a sound, change in zoom. Okay. तो बच्चे ये तो मेटल है. Substance M is metal and substance N is non-metal. ये तो बहुत इजी है, साफ पता लग रहा है. ओके. तो sonorous sound, shape change ये तो सब metals के साथ ही हो सकता है. और potassium और sodium they can be cut with a knife so they are very soft. तो बच्चे आप इसको substance M is metal, substance N is non-metal. ओके. तो सेकंड का C ऑप्शन. All right. Question number 3. Which of the following property is generally not shown by metals? बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी आपको मेटल के अंदर नहीं दिखेगी? डलनेस. ओके, वेरी गुड. तो डलनेस नहीं दिखेगी. बच्चे metals are lustrous in nature. They are lustrous. They have a shiny appearance. उनकी shiny appearance है. They are not lustrous. Sorry, they are not dull. Okay.
तो डलनेस नॉट अ प्रॉपर्टी। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, which of the following properties of aluminum are responsible for same? बेटा यूटेंसिल्स बनाना है, यूटेंसिल्स बनाना है। ऑल राइट मुदित, एक्सेप्शंस होंगी बेटा, एक्सेप्शंस विल बी देयर। ऑल राइट, देखो बच्चे, आपको कुकिंग यूटेंसिल बनाना है तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी तो चाहिए एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए, तो 1 and 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 4। बच्चे वाई नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ये तो बच्चे बर्तन बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी तो कोई मैटर ही नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है। अगर बच्चे आपसे पूछा जाता वायर्स, तो फिर आपको कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी पिक करनी थी, पर क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स पिक किए हैं तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता वायर्स, तब आप क्या पिक करते? 2 and 3 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ऑल राइट, इज दिस क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया? अगर आपसे बोला जाता है वायर्स बनानी है तो आप डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पिक करते, पर आपको क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, आपको यूटेंसिल बनाने हैं। अब अच्छा, यूटेंसिल में डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। इज इट क्लियर? व्हाई वी हैव पिक्ड 1 and 4? एवरीबडी, सबको क्लियर है? ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। चलो बच्चे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ability of metal to be drawn into thin wire. All right, okay, it is ductility. Very good बच्चे। ability to be changed into shape is malleability, malleability। non metals are brittle, metals are malleable, तो ये चीज याद रखनी है। ability to be drawn into thin wires, all right, उसमें हम क्या करेंगे? ओके, उसमें हम यूज करेंगे डक्टिलिटी। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स पीसेस ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर इन बीकर्स containing water. What are the products formed in each beaker? ओके, इसमें क्या आप देखोगे? पोटेशियम और सिल्वर है बच्चे वाटर में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। What are the products formed in each beaker? All right, बच्चे पोटेशियम को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? यहां ये और ये, ओके, एक बार ध्यान से देखिए बच्चे, सिल्वर का तो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता। विच ऑप्शन विल यू पिक, सी और डी? ए और बी तो नहीं है, सिल्वर का कोई रिएक्शन नहीं है, सी। ऑलराइट, तो यू विल पिक सी ऑप्शन। ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? बच्चे अगर आयरन और स्टीम का रिएक्शन करो लंबे समय के लिए तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? सी ऑप्शन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe3O4। ऑल राइट बच्चे, Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ, Fe3O4 किसका बना होता है? दो प्रोडक्ट्स का बना है, FeO डॉट Fe2O3। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? बच्चे अगर हम कैल्शियम को पानी के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
ऑलराइट, तो यहां बचे देखो, एक तो वायलेंट रिएक्शन नहीं है, लेस वायलेंट रिएक्शन है, ऑलराइट, एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो बच्चे यहाँ डी ऑप्शन बनेगा। It reacts very less violently with water and bubbles of hydrogen gas are formed stick to the surface of calcium. All right. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। Generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals? Except manganese and magnesium. बच्चे all metals react with acids to give salt and hydrogen gas. पर बच्चे नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर अगर मैं मैग्नीशियम और मैंगनीज लूं बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसमें बच्चे मैं आंसर क्या पिक करूंगा? आई विल पिक नाइट्रिक एसिड। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे क्वेश्चन 10, बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। Fe plus oxygen, what it will form? इसका आंसर ये है बच्चे 2Fe2O3। इज इट क्लियर? बैलेंस्ड इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑल राइट, आगे क्वेश्चन 11। अ स्टूडेंट मेक्स एन सर्किट using LED battery and connecting wires. Okay, diagram missing है, पर बच्चे the student notices that the LED bulb does not glow. He then replaces the distilled water with salt solution and observes that LED glows. How does salt solution help the LED to glow? बच्चे pure water is bad conductor of electricity. तो distilled water अगर आप लोगे तो उसमें ions नहीं बनेंगे, तो उसमें करंट पास नहीं होता। पर अगर आप salt water लोगे तो ions बनेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Salt solution contains ions which makes it conducive and allows the electricity to pass through it. Salt solution में बचे ions बनेंगे और करंट जो है वो easily pass होगा। All right. Question 12. When calcium oxide is added to water, it completely dissolves in water without forming bubbles. What products are formed in this reaction? बच्चे अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम बनेगा। क्विक लाइम मिक्स्ड इन वाटर फॉर्म स्लेक लाइम। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। वेरी गुड, आप में से काफी सारे बच्चों को ये चैप्टर अच्छी तरह आता है, आप सही आंसर दे रहे हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टूडेंट एड्स सम मेटालिक ऐश। बच्चे मेटालिक ऐश क्या होती है? basic oxide. The ash gets completely dissolved in water. अगर आप बच्चे बेसिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो ये एल्कली या बेस बनाएगा, एल्कली और बेस। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन ऑफ चेंजेस कलर। व्हाट शुड स्टूडेंट डू नेक्स्ट टू टेस्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चे बेसिसिटी करेगा रेड लिटमस पेपर यूज करके। रेड लिटमस पेपर डालेगा, इट विल चेंज टू ब्लू। ठीक है, ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट हैपेंस व्हेन अ pellet of sodium is dropped in water? बच्चे if you drop a pellet of sodium in water, what is going to happen? Na plus water, it is going to initially form Na2O plus hydrogen gas. This reaction is not going to stop here, it will form NaOH. ठीक है, सी ऑप्शन। It catches fire and forms hydroxide. यही बनेगा। एनसीईआरटी की बुक में भी बचे अगर आप देखोगे तो समराइज्ड इक्वेशन यही है।
Na प्लस वाटर गिव्स अस NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बच्चे, पर आप इसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। सोडियम ऑक्साइड आइसोलेट नहीं होगा, वो पानी में ही मिक्स होकर NaOH बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन स्मॉल स्ट्रिप, इधर स्ट्रिप होना चाहिए, ट्रिप लिखा हुआ है स्ट्रिप, मैग्नीशियम एंड नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा? MgNO3 ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस। बचे मैग्नीशियम प्लस HNO3 इन वेरी डाइल्यूट कंडीशंस, अगर बहुत डाइल्यूट कंडीशन है तो बचे इसमें बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16, lead plus copper chloride gives us PbCl2 plus copper। lead and copper chloride, इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? बचे which option explains reason for formation? बचे obviously lead is more reactive than copper, D ऑप्शन, lead is more reactive, तभी उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, lead is more reactive, it has displaced copper, it is based on reactivity series, single displacement reaction। All right, question number 17, a student adds an equal amount of copper sulfate in 2 beakers। बच्चे 2 beakers में equal amount copper sulfate है। he adds zinc in beaker P and silver in beaker Q। तो बच्चे जिंक ऐड किया बीकर P में, सिल्वर ऐड किया बीकर Q में। Which option arranges the metals in increasing order? बच्चे ऑब्वियसली बीकर P में रिएक्शन होगा, इसके अंदर नो रिएक्शन, तो व्हाट वुड बी दी करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस बताइए? सिल्वर कॉपर जिंक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम होगा बच्चे सिल्वर, फिर होगा कॉपर, कॉपर के बाद होगा जिंक, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट is 19, the number of electrons in its A plus ion is। बच्चे ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर बच्चे प्रॉब्लम ये है कि ये A प्लस आयन है, A प्लस आयन, A प्लस कैसे बना? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए। ओके करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे इसकी? 289 नहीं होगी, इट विल बी 2881। दिस इज पोटेशियम, 289 नहीं होगी बच्चे, 2881। ऑलराइट, चलो तो आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH gives me X plus H2O। what is element X? बच्चे प्लीज रिमेंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, it is amphoteric oxide, it will react with both acid and base to form salt and water। तो इसमें बच्चे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा एंड इसका आंसर है सोडियम मेटा एलिमिनेट, NaAlO2। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, NaAlO2 ऑप्शन ए, NaAlO2 ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ऑल राइट, सोडियम एलिमिनेट। ओके, अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? बच्चे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कम हो रही है,
ऑल राइट, सिमरन बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रहे हो आप? ओके, लेट्स राइट इट डाउन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH gives us NaAlO2 प्लस वाटर. इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. एल्यूमिनियम के दो हैं तो यहाँ सोडियम और एल्यूमिनियम 2 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया. अब बचे सोडियम भी बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है. ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 + 2 5, और यहाँ हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 2 है. ऑल राइट, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 5 है. बैलेंस होगी इक्वेशन. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इट इज बैलेंस्ड. क्वेश्चन 20 मैंने देखी एक बार इक्वेशन लिखी है, चेक करो एक बार. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. बचे इसका सही ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. MgAlZnFe. ऑप्शन ए 20 का ए. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pairs will give us displacement reactions? बच्चे इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? ये तो बच्चे बहुत ही आसान है. जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम से डिस्प्लेस हो जाएगा. दिस वन, कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट. बके बाकी नहीं हो पाएंगे. रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए, कॉपर मेटल सिल्वर नाइट्रेट से ऊपर हो गया, सिल्वर से ऊपर है, तो बचे डी कैन अकर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22. which of the following is poor conductor of heat among the given metals? बचे इसका सही आंसर है लेड. लेड इज पुअर कंडक्टर. मरकरी भी कोई इतना अच्छा ज्यादा कंडक्टर नहीं है, पर बचे लेड होगा इसका आंसर. इन सब में कंपैरेटिवली लेड इज पुअर कंडक्टर. ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है. इज इट क्लियर? 22C. ओके, क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकालना है बच्चे, इजी है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी करा है हमने. इसमें आप एक और एग्जांपल याद रख सकते हो, जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अगर मैं जिंक ऑक्साइड को NaOH में डालूं तो यहां सॉल्ट बनता है Na2ZnO2 प्लस वाटर, सोडियम जिंकेट. तो बच्चे दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक. चलो क्वेश्चन नंबर 24. In general, the number of electrons in outermost shell of a metal atom, it would be बचे 1 to 3. 1 to 3 electrons, outermost shell of metal atom. This is based on electronic configuration. उसके बाद बचे क्वेश्चन नंबर 25. The composition of aqua regia. aqua regia की बचे क्या composition है? Concentrated HCl to concentrated HNO3, 3:1. ठीक है. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आयनिक कंपाउंड्स, सॉरी नॉट आयनिक कंपाउंड्स. तो बच्चे इसमें करेक्ट ऑप्शन है HCl एंड CCl4. तो बच्चे इसका ऑप्शन हो गया 2 and 3. बच्चे HCl and CCl4, they are covalent compounds. They are formed by sharing of electrons. Okay, is this clear? Question number 26 सबको clear है? HCl और CCl4 बच्चे covalent compounds हैं, they are not ionic compounds. Question number 27.
Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? बच्चे आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से एग्जिबिट नहीं होती? देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट सही है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, बच्चे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. या तो मोल्टन स्टेट हो या एक्वस, पानी में डिसॉल्व हो. ठीक है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन मोल्टन स्टेट. ओके, तो मुझे सही ये पिक करना है. ऑल राइट, इज दिस क्लियर? 27B. ऑल राइट. 28. Generally, metals are solid in nature. Which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? Again, a fact-based question. Answer is mercury. Hg, hydragyrum, mercury. All right. तो mercury बचे liquid state में मिलती है. उसके बाद बचे question number 29. Generally, metals are non-lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? तो वजह इसका आंसर है डी ऑप्शन, आयोडीन. आयोडीन के क्रिस्टल मिलते हैं एंड दीज क्रिस्टल्स आर लस्ट्रस. ऑलराइट, फिर बचा क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? बच्चे कौन से चार मेटल्स को डिस्प्लेस हो जाएंगे? ए. देखो बच्चे, इसमें आप बहुत सिंपल सा वो है, कॉपर. लेस रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव ढूंढना है. तो बच्चे सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? कॉपर. सॉरी, नॉट कॉपर, सॉरी, सिल्वर. कॉपर के नीचे बचे सिल्वर है. सॉरी, नॉट कॉपर, सिल्वर. बचे कॉपर से नीचे सिल्वर है, तो सिल्वर बचे सबसे डिस्प्लेस हो जाएगा. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? इनकरेक्ट, सॉरी. इट बर्न्स विद dazzling white flame, बच्चे ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, बच्चे ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. दिस इज रॉन्ग. इट रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर. देन इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड evolves हाइड्रोजन गैस. बच्चे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अब आ जाओ ऑप्शन डी. इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बच्चे यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां MgO बनेगा. अगर आप बच्चे मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. ओके, नॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो बच्चे इसमें जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है वो तो बी है. ओके, पर यहां क्योंकि दो स्टेटमेंट गलत हो गई हैं, ये भी गलत है. बी एंड डी गलत है. ओके, तो यहाँ मतलब गड़बड़ हो गई क्वेश्चन. यहाँ कोडिंग देनी चाहिए थी. कोडिंग मतलब एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन आप पिक कर सकते थे. इज इट क्लियर? स्टीम के साथ बचे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नहीं बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो मेरे हिसाब से तो बी एंड डी दोनों गलत है. ऑलराइट, ऑलराइट, चलो क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ गया क्वेश्चन 31? याद ये रखना है, वाटर के साथ तो बच्चे हाइड्रोक्साइड है, पर अगर आप स्टीम यूज करोगे तो ऑक्साइड बननी चाहिए, नॉट हाइड्रोक्साइड. तो बच्चे इसमें बी और डी गलत हो गया. तो मतलब कोडिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप देना चाहिए था. आप दो से ज्यादा स्टेटमेंट पिक करते. ऑलराइट. क्वेश्चन 32. रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जी. बच्चे एक्स और वाई के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कंपाउंड जेड बनता है.
X loses electron and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? All right. बच्चे कंपाउंड Z तो आयनिक कंपाउंड है, ये तो पक्का हो गया. कंपाउंड Z इज आयनिक कंपाउंड. अब सोच के बताइए. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉट शोन. अच्छा, नॉट शोन निकालना है. तो बच्चे हाई मेल्टिंग पॉइंट तो है. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट अकर्स एज सॉलिड. बच्चे यही है लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यही गलत है. यही आंसर होगा हमारा. ऑल राइट, बी ऑप्शन. डन. क्वेश्चन नंबर 33. बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन. एक्स वाई जी. एक्स इज 28, 287, 282. ओके. बच्चे एक्स इज नोबल गैस. ये तो कोई नोबल गैस है क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी फिल्ड है. ये नॉन मेटल है, ये मेटल है. अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. एक्स इज मेटल, रॉन्ग. वाई इज मेटल, रॉन्ग. Z is non-metal. Z is non-metal, wrong. Y is non-metal, Z is metal. तो बचे ये ऑप्शन करेक्ट है. D option is correct. All right. 33D. Is it clear? Okay. अब चलो बचे क्वेश्चन नंबर 34. Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide? Amphoteric oxide कौन बनाएगा बचे? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल. उसका जो ऑक्साइड बनेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा. आप इसमें जिंक भी याद रख सकते हो. एक और. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 34. Generally, non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor? Exception बतानी है बेटा. तो बच्चे इसका आंसर है ग्रेफाइट. Graphite is allotrope of carbon and it is good conductor. Allotrope. It is allotrope of carbon and it is good conductor. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 35 का बी. ऑल राइट. 36. इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल. द मटेरियल जनरली यूज्ड इज. बच्चे कौन सा मटेरियल यूज होता है? पीवीसी. ऑल राइट, पीवीसी. वेरी गुड. पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक and it is insulator. Okay. Question 37. Which of the following can undergo a chemical reaction? बच्चे इसमें देख लो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है किस केस में. बच्चे ये रिएक्शन होगा. ये तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी हुई है. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. बच्चे ये रिएक्शन हो जाएगा. ओके. ओके. क्वेश्चन 38 बताइए. कॉपर सल्फेट कैन बी इजिली केप्ट इन कंटेनर मेड अप ऑफ. आप इसे किस कंटेनर में रख पाओगे बेटा विदाउट एनी रिएक्शन? बच्चे आपको उससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल ढूंढना है, तो इसका आंसर है सिल्वर. सिल्वर. ऑल राइट. 38C सिल्वर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. असर्शन रीजन. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 39. बच्चे असर्शन देखो पहले. सबसे पहले the compound MgCl2 will not conduct electricity in solid state.
बच्चे इज द असर्शन ट्रू? क्या असर्शन सही है? यस, असर्शन इज ट्रू। आपको मेल्ट करना पड़ेगा इसको, या इसको पानी में मिलाओगे तब। मूवमेंट ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। बच्चे रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। अब बच्चे थिंक, इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यस, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन 40। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। बच्चे दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। दिस इज रॉन्ग। बच्चे नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऑल राइट, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। तो बच्चे रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। आई विल पिक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 41। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। बच्चे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी गलत है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक। All right. Aluminium reacts with both acid and bases as given below. Al2O3, HCl, AlCl3, then AlO2. Okay. All right. बच्चे ये दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं, तो रीजन इज करेक्ट। रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स। तो बच्चे अगेन यू विल पिक डी। इज इट क्लियर? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। Copper does not displace hydrogen from dilute acids. बच्चे this statement is also true. Dilute acid के साथ copper हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। Reason, copper is less reactive than hydrogen. Reason is also true. तो बच्चे यहाँ ऑप्शन क्या आएगा? A. Because assertion is, sorry, reason is correct explanation of assertion. Clear everybody? समझ आ गया सबको? कॉपर बचे हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा डाइल्यूट एसिड के साथ। रीजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बच्चे दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Less reactive metal can displace more reactive metal. बच्चे this statement is wrong. तो इसका सही क्या हो गया? A option. Assertion is true, reason is false. All right. Magnesium is less reactive than sodium. This statement is true. बिल्कुल सही statement. Sodium, sorry, ए नहीं आएगा बच्चे, इसका सी आएगा। राइट, सी। 43 का सी है बच्चे। ओके, सोडियम रिएक्ट्स मोर विग्रसली। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब बच्चे डिसाइड, इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? ओके, बच्चे इसका ऑप्शन ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वाई बी? रीजन? देखो बच्चे, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आप ये कह रहे हो मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो ऐसा क्यों है? आप उसका रिएक्शन ही देखोगे ना कोई कंपेयर करने के लिए। तो सोडियम विल रिएक्ट मोर विग्रसली विद ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम। तो मुझे तो ये रीजन सही लग रहा है।
मैं तो कोई ना कोई रिएक्शन करके ही देखूंगा ना, या तो पानी में डाल लो, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। व्हाट डू यू थिंक एवरीबडी? मेरे को तो ए लग रहा है बच्चे इसका आंसर, क्योंकि मैं कोई केमिकल रिएक्शन ही करके देखूंगा। ए। Okay, Aram is saying displacement should be the main reason. Okay, all right. चलो, तो that means Aram is saying इसको B रखते हैं। मेरे को तो बच्चे इसका A लग रहा है। हम जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज एग्रीड, उसमें हम फैक्टर्स और भी बहुत सारे देखते हैं, पर बच्चे मैं इससे भी तो डिसाइड कर ही पाऊंगा, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं रिएक्ट करके देख सकता हूं। ए ऑप्शन। चलो, क्वेश्चन नंबर 45। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। व्हाट डू यू से? इज इट ट्रू? असर्शन इज ट्रू। All metals except mercury exist as solids at room temperature. बच्चे this is also true. पर बच्चे reason is not correct explanation. तो I will pick B. अगर यहां बच्चे ये बोला गया होता iodine is non-metal but it is lustrous, रीजन में दिया होता iodine exists in the form of solid crystals, तो बच्चे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। इसमें तो मेटल की बात होने लग गई, तो 46 का बी, सॉरी 45 का बी। अब 46 का बताइए। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। बच्चे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Silver and gold are very unreactive metals. Reason is also correct. And बच्चे is it correct explanation? Yes. तो इसको हम पिक करेंगे A. All right. Question number 47. Okay, we are at the end of the questionnaire. I think 50 questions ही हैं, तो हमने आज ये कर लिए हैं। Question 47. When a metal is added to dilute HCl solution, there is no evolution of gas. तो बच्चे इसका क्या आंसर होना चाहिए? जो हाइड्रोजन के नीचे है। ऑल राइट, सिल्वर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन 48। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? बच्चे इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन नॉन मेटल। वेरी गुड। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 49। टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, द करेक्ट प्रोसेस वुड बी। बच्चे करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा बताइए? प्रिपेयर कॉपर सल्फेट एंड डिप जिंक स्ट्रिप इन इट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट करके देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑल राइट, ए ऑप्शन। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। Which product is formed in the chemical reaction between small piece of magnesium and nitric acid? बच्चे आप ये मान के चल रहे हो कि ये डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन हो रहा है, तो बच्चे इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्लियर? समझ आ गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नीशियम एंड नाइट्रिक एसिड है, सॉरी, MgNO3 ट्वाइस एंड हाइड्रोजन। सी ऑप्शन आएगा। Not water, hydrogen gas, metal plus nitric acid, बहुत dilute condition में, it will form nitrate salt and hydrogen gas. Is it clear everybody? चलो, all right. तो बच्चे यहाँ ये मेटल नॉन मेटल की वर्कशीट डन है। बच्चे मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे से ही क्वेश्चन आएंगे मेटल नॉन मेटल में, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऑल राइट, बच्चे आई विल बी शेयरिंग दिस वर्कशीट विद यू। ये वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इस क्वेश्चन बैंक को एक बार फिर रिवाइज करके देख सकते हैं। बच्चे मेटल नॉन मेटल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि मेटल नॉन मेटल का बहुत कम पोर्शन ही रह गया है। ठीक है, चलो।
Is it clear everybody? All right, चलो ओके बचे this coming Sunday I'll be giving you a sample paper test 2. जैसे आपका मैंने एक लिया था ना फुल बोर्ड पैटर्न का एग्जाम, वैसे ही इस संडे को मैं एक और लूंगा. इज दैट ऑल राइट विद एवरीबडी? आपके एग्जाम तो खत्म हो गए होंगे अब कि चल रहे हैं? बच्चे जिन बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, कोई पीरियोडिक टेस्ट होता है या कुछ होता है, प्लीज उसको जरूर शेयर करिए ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा. ऑल राइट. हाँ जी सिमरन. गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर आई हैड अ डाउट. बोलो. सर क्वेश्चन है, इफ a few drops of concentrated acid accidentally spill over the hand of a student, what Right. should be done? Okay. Sir, A option is wash the hand with saline solution. B option, wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. B option है बच्चे इसका सही आंसर. Yes sir, पर इसमें why can't we wash the hand with plenty of water and apply solution of sodium hydroxide on the hand? बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एल्कली है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो तो खुद कोरोसिव है, तो स्किन तो और बर्न हो जाएगी. नो सर, बट जिस पार्ट पे जले उसी पार्ट पे डालेंगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को. बेटा आपने कभी ये सुना है जले पे नमक डालना? यस सर. सुना है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब होता है? या आग में घी डालना सुना है? यस सर. क्या मतलब होता है इसका बताओ, सुना तो है, मतलब क्या होता है इसका? तो मतलब कि पहले ही मतलब उसको हाथ पे जल चुके और जल जाएगा. तो बस फिर उसी तरीके से सोचो ना. अगर बच्चे आप कह रहे हो कि NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है और आपके हाथ पे ऑलरेडी एक एसिड गिर गया है, तो अब उस पे अगर NaOH डाल दोगे तो बेटा तो हाथ और जल जाएगा और डैमेज होगा. हमें इंजरी को न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज तो हम उसे किसी माइल्ड एसिड बेस से करेंगे ना. तो माइल्ड बेसिक सॉल्ट कौन सा है? बेकिंग सोडा. तो सर जो एसिड गिरा है वो भी तो कंसंट्रेटेड है, उसकी भी तो पीएच वैल्यू बहुत लो है. कौन सा एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड है ना, तो पीएच वैल्यू 1 to 3 बेटा होगा. वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना, हमने इंजरी को ठीक करना है, हमने और खराब थोड़ी करना है. अगर कंसंट्रेटेड HCl के ऊपर मैं NaOH डाल दूंगा जो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन है जिसका एल्कली, तो बच्चे मेरा तो और डैमेज होगा ना. बच्चों आपकी स्किन पे और डैमेज हो जाएगा. ओके सर. तो मैं माइल्ड बेस यूज करूंगा ताकि मैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकूं. ओके सर. देखो अब देखो सिमरन, आप खुद सोचो, अगर आपको स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो विल यू ड्रिंक NaOH? नो सर. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? So it is very reactive. लो, तो जब पीने की बात है तो NaOH नहीं पीना, पर अगर किसी और दोस्त का हाथ जल गया तो उस पे NaOH डाल देंगे, है ना? नो सर. तो बेटा जो चीज आप पे अप्लाई हो रही है लॉजिकली वही स्किन दूसरे पे अप्लाई है ना. यू विल नॉट यूज NaOH. समझ आ गई? यस सर. हाँ, और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सीडेंट कभी भी लैब में हो सकता है. तो ये देखो आपको ये एक्चुअली ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रिकॉशन होती है लैब में. हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड गिर गया तो उस पर और बेस लगा दी स्ट्रॉन्ग. बेटा इट विल डू मोर डैमेज. हमें माइल्ड कोई बेस लगाना है ताकि उससे जो मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, फिर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसको इलाज करवा सको. समझ गए? यस सर. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ठीक है, चलो. ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ओके बच्चे, आप लोगों के प्री टर्म आप लोग बोल रहे हैं 22 या 23 को शुरू हो रहे हैं, तो मुझे बताइए विल यू बी एबल टू गिव अ पेपर ऑन संडे? संडे को दे पाओगे? चलो ठीक है. तो बच्चे फिर फुल बोर्ड पैटर्न का मैं पेपर एक और सेकंड पेपर
मैथ्स ऑनलाइन ऐप पे जैसे पहले था वही टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे फ्राइडे को, जो आप टाइम मुझे बोलोगे तो फिर मैं संडे को उसको डिस्प्ले कर दूंगा उस पे। ऑलराइट, ओके, चलो। और बच्चे जब आपके पेपर्स हो जाते हैं तो प्लीज डू शेयर क्वेश्चन पेपर विद मी। इट इज मुझे खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि आपके स्कूल के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, सो आई गेट एन आइडिया। ऑलराइट, एंड आई थिंक CBSE हैज स्टिल नॉट इश्यूड द डेट शीट। कह रहे थे आज इश्यू हो जाएगी, पर अभी तक आज भी डेट शीट इश्यू नहीं हुई। तो चलो, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑलराइट, ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। A fake one was out for 12th. All right, fake one. Okay, ऐसा तो बहुत करते हैं। 30th के बाद अनेशा, 30th के बाद? अरे नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। They have to issue the date sheet as soon as possible. It would be very late. Okay. Okay, test. बच्चे 30th के बाद तो फिर हम दिवाली ब्रेक में चले जाएंगे। दिवाली ब्रेक हो जाएगी फिर तो 5-6 दिन की। तो 30 के बाद तो टेस्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दिवाली में ही करेंगे। ऑल राइट, तो दिवाली में चेक कौन करेगा? मेरी भी छुट्टी होगी। ओके, चलो एक टेस्ट तो मैं आपको इस बार संडे को दे देता हूं। आई विल एक्सटेंड दी टाइम। मैं एक्सटेंडेड टाइम दे दूंगा, ठीक है ना? तो आप आराम से उसको जब थोड़ा टाइम मिले तो बीच में कर दीजिएगा। ऑल राइट, ओके, चलो बच्चे, आई विल बी एंडिंग दी सेशन हियर।